What's the difference between a linear arrangement and a circular arrangement? What is the difference? Yes. What's the difference between circular arrangement and linear? All the combinations are straight. Either we have the extreme left or we have the extreme right. But when we talk in terms of a circular arrangement, what is happening? There is no left and there is no right. So that is why the first person who sits, decides whether the people will be sitting to the right of him or, is it clear? So the first person he sits, again, this is the basic concept. When the first person he sits, what happens? जब पहला आदमी बैठता है फिर क्या होता है? When the first person sits, what happens? Automatically the arrangements are made according to the first person. Is it clear? Let it not be this room, a room. You'll say, ये तो tape. He's sitting in front of the TV screen. We listen in terms of, we are looking in terms of without the surroundings. Without the surroundings, we do not know what will be left or right of him. अभी यहाँ पे बैठेगा, the people will either sit left or right of him. But the first person, that is why in this case, linear arrangement, the answer is n factorial. In case of circular arrangement, it is n minus 1 factorial. Any doubts with this or not? Okay. Similarly, we have a concept of clockwise, and if clockwise and anti-clockwise arrangements are to be considered same, then the number of arrangements is, if clockwise and anti-clockwise. तो पहला तो आ गया circular arrangement में number of variations कितने हो जाएंगे? n minus 1 factorial. Circular arrangement. If clockwise and anti-clockwise arrangements are considered to be same, then the number of arrangements would be, suppose we have a person sitting here, A1, A2, A3, A4, A5, and A6. This is what? Clockwise. Now, if I look at anti-clockwise, suppose it becomes same, A1, A2, A3, A4, A5, and the last one is A6. If the arrangement becomes same, what happens automatically? What would happen? Then the number of arrangements would be n minus 1 factorial divided by 2. But remember this thing, this can only happen in case of anything which you can hold in your hand, not a table, not in a park or anything, something that you cannot hold in your hand. Something that you can only hold in your hand. If the clockwise and anti-clockwise arrangements are the same, it is n minus 1 factorial divided by 2. Any doubts with this? Okay. Similarly, how many garlands can be used making all 6 flowers? What's the answer for this? So number of ways is n minus 1 factorial. Number of ways is 6 minus 1 factorial, which is 5 factorial. Now, the second thing I have to ask myself is, can I hold a garland in my hand? Yes. So we divide by. That's the only question you have to ask. What's your answer? 5 into 4 into 3. That makes it how much? 60 number of ways. How many garlands can be made? 60 garlands can be made using all 6 different flowers, because clockwise and anti-clockwise would remain the same. Any doubts? That is n minus 1. Only thing that you have to ask yourself, if I can hold it in hand, I divide by 2. If I cannot hold it in hand, I keep it as n minus 1. Why is it n minus 1? Because the first position has to be fixed. Next, in how many ways can 6 art and 6 non-medical students be seated around a circular table so that no 2 art students are together? No 2 art students are together. So first of all, how many seats do we have? We'll have 12 seats. Not 6 seats, we'll have 12 seats. We'll have a total of 12 seats. Now make a think, how do we do this? How would I do this? How would I do this question so that no 2 art students are sitting together? That's the question. How do I do it? Yes, no 2 art students are sitting together. How do I do it? Yes, what's the answer? Think. 6 ways. 6 art students and 6 non-medical students can be seated in a circular table. The question comes, in how many ways can we do it?
Okay. Suppose we make 6 art students sit down. If we make them sit down, how do we make them sit down? Anybody? We make a circle. First, second cannot happen with him. Third, is it clear? First, who has to sit? The art student will be sitting. Yes or no? So like this, if an art student sits and we have around how many seats? 12 seats. Is it clear or not? We have how many seats? 12 seats. I made this extra, I think, so I need to cut it just to make a figure for you. This is my first seat. This would be my third. This would be approximately my sixth. This would be my ninth, and this would be my 12th seat. Yes or no? So for somebody has to sit here, somebody has to 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, and 12. That's how we'll be doing it. If first student art is sitting, then who has to sit in the next one? Non-medical. Then, so it will be something like this. He has to go in these positions. So the first seat, art student can sit anywhere. After that, the combinations are going to be formed. Is it clear? How would the combinations be formed? How many ways? N minus 1. So that is 5 factorial. Because first art student has to sit. Once he sits, it becomes how many ways? 5 factorial. That is N minus 1. That will become 5 factorial. Now, once he sat, now where would the non-medical student sit? The second, so and so. How many ways? Now there are 6 seats. How many students? 6. Because how many non-medical are left? 6. So 5 into 6 factorial. Because the seats has already been decided. This seat is already decided. The seats are already decided for him to sit. Is that clear or not? Okay. Next, this one. 2 chairs are arranged symmetrically around the table. 2 chairs are arranged symmetrically around the table. What it says further, there are 2 people, including A and B, who wish to occupy these chairs. Find the number of seating arrangements. If, what's the first arrangement? First is if A and B sit together, and the next arrangement is A and B sit opposite to each other. There are 2 people. A and B have to sit together. First is, if we look at it, who has to sit? Either A or B has to sit. So if A sits, B is going to sit together next to it. So we consider this as, when they are sitting together, we consider them as 1 unit. How many units are remaining? How many spaces are remaining now? How many spaces are remaining? Anyone? 2n minus? No. How would be 2n? अगर A अकेला बैठता तो 2n minus 1 होता, पर A और B इकट्ठे बैठ रहे हैं, 2 यूनिट्स बच गए, तो कितना यूनिट्स बचा? 2n minus 2 seats, because 2 लोग तो बैठ गए. We consider them as 1. इनकी सीट फिक्स हुई फर्स्ट, तो इसको हम कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. बचे कितने? जो स्टूडेंट्स बच गए कितने हो गए? 1 इंटू 2n minus 2 factorial into 2 क्यों कर रहा हूं? Because A can sit with B in this way and B can sit with A in this way. Yes or no? So into 2, why? Clear? Next is if A and B sit opposite to each other. If A and B sit opposite to each other, A कहीं पे बैठेगा, B उसको opposite ही बैठेगा, तो कितने number of arrangements हुए? 1. Because पहली सीट तो इन्होंने ऑक्यूपाई करनी है. बची कितनी सीट्स? 2n minus 2 factorial, because A और B बैठ गए. इसमें 2 मल्टीप्लाई नहीं होएगा, because A and B, A के ऑपोजिट हमेशा क्या रहेगा? B. Is it clear or not? कोई ये बोल सकता है B और A ऐसे हो जाता, बात तो वही है. स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? A and B. Any doubts with this? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊं जो आया था. क्वेश्चन, a group of 5 people consists of a couple. 5 लोग हैं, इसमें कौन है? एक कपल है. Are to be seated on a round table for a meeting. What is the total number of ways? So that
the couple do not sit next to each other. The question is, they do not sit next to each other. What do you think should be the answer? A group of 5 people consist of a couple. 5 लोग हैं, उसमें एक couple है. Seated around a round table for a meeting. What is the total number of ways in which the seating arrangement can be made? The couple do not sit with each other. Do not sit with each other. Huh? 12. Yes. How? 5 factorial तो आ ही नहीं सकता. Total number of ways. As when it comes not. When it comes not, because we've done this earlier. When it comes not, हम क्या सोचते हैं? जब दोनों बैठे हैं साथ में. अब couple total number of ways of filling it up. पहले तो हमने बोला total number of ways of filling the total positions कितना है? 5 लोग हैं तो कितना हो जाएगा? 4 factorial. कितना हो जाता है 4 factorial? 24 ways में हम fill कर सकते हैं. अब couple husband and wife are sitting together. बचे कितने लोग? 3 factorial. कितने बचे? 3 into 2. पहले husband wife और husband. तो ये तो हुआ टोटल वेज माइनस वेज जब वो साथ में है. कितने वेज हो गए जहां पे वो साथ में नहीं है? अच्छा 24. क्यों? 5 लोग थे तो एक माइनस होता है. 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24 नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग. नंबर ऑफ वेज व्हेन दे आर सिटिंग टुगेदर. हस्बैंड एंड वाइफ आर सिटिंग टुगेदर. 3 फैक्टोरियल इंटू 2 क्यों होता है? बिकॉज हस्बैंड वाइफ हस्बैंड. एनी डाउट्स? ये क्लियर है सबको? ट्वेंटी फोर में से हाँ जी. दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज 24. 12 वेज है जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ साथ में बैठ रहे हैं. तो कितने वेज हो जाएंगे जहां पे साथ में नहीं बैठेंगे? दिस वन. क्लियर? कैन आई मूव अहेड? नेक्स्ट. Assuming Cricket World Cup 2023 is played between 10 teams, how many total matches are played in league stages if each team plays every other team exactly once? Exactly once. Now we are talking in terms of combination. We are talking in terms of combination. What do you think should be the answer? Okay. पहली चीज तो हम अंडरस्टैंड करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट विद इट, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. परम्यूटेशन कब होता है और कॉम्बिनेशन कब होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. वी से पहले इंडिया को खेलना पाकिस्तान के अगेंस्ट और ये सब. दैट इज इफ आई से then that is permutation. If combination means the क्या नहीं important, the order is not if the order is not important, we take it as combination. Now in case, suppose let's understand it, say there are इस case में भी n distinct objects. There are n distinct objects. Before we do this question, I want to do this. There are n distinct objects and want to select some objects. Suppose R objects. हमारे पास 5 distinct objects थे. Suppose A, B, C, D, E. और इसमें से हमने क्या चूज करना है? Want at least 2 objects. Is it clear? How would I choose? A के साथ क्या लग जाएगा? B. A के साथ क्या लग जाएगा? C. A के साथ क्या लग जाएगा? D. A के साथ क्या लग जाएगा? E. Yes or no? B के साथ क्या आएगा? C. B, D. B, E. C के साथ क्या आएगा? C, D. C, E. D के साथ क्या आएगा? D, E. How many is the case? Simple सा है. 5 into 2 कितना हो गया? 10. Is it clear? What is there? 10. और जिसको हम बोलते हैं हमारा NPR permutation. NP by 2. Is it clear?
अगर ये NPR होता तो ये क्या बना आपका, अगर ये n प्रोबेबिलिटी बोलता, प्रोबेबिलिटी में क्या, परम्यूटेशन में क्या होता है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। परम्यूटेशन में क्या आता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है विदाउट एनी ऑर्डर, ए बी सेम एज बी ए। पर परम्यूटेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ए बी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, डी ए भी हो सकता है, ई ए भी हो सकता है, यस और नो। अगर हम इसको करते इसमें कितना होता है, डबल हो जाता। सो NP2 ही करते हैं ना परम्यूटेशन के लिए। सो व्हाट इज NP2 बाय द वे, 5P2 कितना हो जाएगा, 5 × 4 क्या हो जाएगा, 5 × 4 इंटू, नीचे डिवाइडेड बाय क्या आता है बेसिकली, अगर हम ये करते हैं NP2 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 2 फैक्टोरियल, yes or no? That is 5 फैक्टोरियल divided by 3 फैक्टोरियल, which is 5 × 4. How many ways are doing it? 20. So that's how I'm trying to tell you how the formula comes. Permutation में what is important? Order. इसमें क्या था, AB is same as BA. So we made a combination. So what do we get? Permutation is twice of combination. So formula कैसे derive हो रहा है, मैं एक simple, जब भी कोई फॉर्मूला नहीं याद आए तो क्या करना है, ऐसे कर लेना। क्लियर और नॉट? व्हाट इज दिस, परम्यूटेशन इज ट्वाइस ऑफ कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन क्या होता है हमारा, यहाँ पे NPR था तो ये क्या हो जाएगा, 2 और NCR × 2। इन केस हमारे यहाँ पे क्या था, 5P2 इज इक्वल टू 5C2 × ये बनेगा, yes or no? That is what we are able to find it out. First clear के नहीं? What is permutation? An order is given, either AB or BA. This one sequence is given. इसमें order given था नहीं, there is no order given. AB same as BA, BA is same as AB, so there's nothing. So permutation is basically combination. Permutation is twice of combinations. Is it clear or not? Permutation order is important, combination order is not important. So what is NPR by the way? NPR is, अगर हम परम्यूटेशन की बात करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। इसमें कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, NCR क्या हो जाएगा, इंटू 1/r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इससे फॉर्मूला मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि बनता कैसे है, ये क्लियर है कि नहीं, पता था ऐसे बनता है फॉर्मूला, सिंपल। किसी ने ट्राई किया, ऐसे बोला तो यही हो रहा है, जब हम 3 लेंगे × 3 हो जाता है। इज इट क्लियर? सो इट विल बी 3 × 2, दैट विल मेक इट 6 टाइम्स। तो उसने देखा 3 फैक्टोरियल आ रहा है, ये तो मैं 2 के लिए गया, 3 के लिए तो मेरे को 6 टाइम्स करना पड़ जाएगा। Is it clear or not? So what do we get is this thing. Everybody clear with this? What is the difference between this and this? Everybody clear? Yes or no? कौन सा? वो × 2 किया ना, तो 2 कैसे बना, जो वो था R की वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? That's how we are able to find it out. कोई डाउट? अब मैं थोड़ा सा और दे दूं, इसको रब कर सकता हूँ। एवरीबडी क्लियर, लिख लिया सबने? एवरीबडी इज रिटन। मल्टीप्लाई में किस केस में, वो डिवाइडेड बाय 2 है ना, 2 फैक्टोरियल है, वो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। बस मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिया था बताने के लिए कि कैसे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट की चीज तुम्हें क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए कैसे बनता है। दैट्स इट। इज इट क्लियर? क्या R फैक्टोरियल क्लियर, सिर्फ एग्जांपल दिया था। ये क्लियर? कैन आई रब दिस नाउ एवरीबॉडी? एनी डाउट्स विद दिस? Now, I am telling you what kind of questions are going to come. I want to make sure that this is not difficult. This is absolutely easy. This is nothing at all difficult. जो नंबर वन मैंने बताया था परम्यूटेशन में, जितनी बार रिपीट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, वो फैक्टोरियल रूल्स होते हैं। कई चीज हमारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रहेंगे, सेम। लेट्स डू 10C3 क्या होता है, सॉरी, this would be 10 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial. ये क्लियर है कि नहीं? This would be the case. Any doubts? Can we move ahead? Yes or no? Can we move ahead everybody? अभी इस क्वेश्चन में करेंगे। हाँ, अब देखो, जहां पे आपको सिलेक्शन की बात नहीं आती, आपको एक सिंपल सी चीज बताया,
अज्यूमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप, आपको ये नहीं बताया कि आपको किसको चूज करना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन। 10 टीम्स हैं, खेलने के लिए साथ में कितनी टीम्स चाहिए? दो। एक मैच खेलने के लिए 2 टीम चाहिए, 4 तो नहीं चाहिए। स्पेक्टेटर तो नहीं बिठा के बिठाओगे। सो व्हाट इज योर आंसर? 10C2 बस। That will be what? 10 factorial divided by 8 factorial into 2 factorial. 10 into 9 divided by 2. What is the answer? 45. वो बोलते हैं कितने हैंडशेक्स होंगे, इसी पे तो आता है क्वेश्चन। क्योंकि वो सिलेक्शन थोड़ी करना है, आपने इसको चूज करना है, उसको चूज करना है। समझ आया? वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो क्या था कि भाई 2 आदमियों को चूज करना है, किसी भी ऑर्डर में चूज कर सकते हैं, कितने मैचेस हो सकते हैं वो आपको ये भी बोल सकता है फर्दर कि हमने 2 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दी टीम्स, ये चीज। Okay, before we do this, I want to explain the properties because हम properties use करेंगे, then I'll tell you. Yes, clear है कि नहीं? What is properties of NCR? ये जब ये बेस में 0 होता है, पावर सेम होती है, तो हमेशा क्या बनेगा? 1। हमेशा क्या बनेगा? 1। What it will become? It will become what will become 1. NC1 would always become N. Should I prove it to you? Let's do. 7C7. That makes it 7 factorial divided by 7 factorial into 0 factorial. Is it clear? What is 0 factorial? 1. 7 factorial by 7 factorial into 1 makes it 1. Clear or not? So this is something that we have to use. ये calculation में बहुत use होएगा. मैंने permutation में नहीं कराया because permutation में नहीं use होता, combination में use होता है calculation easy करने के लिए. Majority cases में तो आने नहीं वाले लंबी calculations. अगर आ जाती है तो पॉइंट इज वो लंबी कैलकुलेशन यूज करके दे रहे हैं, वो इजी है। अगर हम बोले 5C1 क्या होता है? 5C1 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 1, व्हाट इज दैट? 5। 5C1 क्या होगा? 5। 7C1 क्या हो जाएगा? 7C1 क्या हो जाएगा? 7। इज इट क्लियर? 8C1 क्या हो जाएगा? अब मैं कैलकुलेशन में यूज नहीं करने वाला, मैं सीधा ये लिखने वाला हूँ। इज इट क्लियर? 8C8 क्या होएगा? 1। 8C0 1। ये मतलब क्या है? 5C2 इज सेम एज 5C3। इसका मतलब ये है। कैसे 5C2 लिखते हैं? 5C2 क्या है? What is 5C2 everybody? Very good. 5C3 क्या है? 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial. It means the same. This is very very important which we are going to use. चाहे इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। Is that clear? If we use it this way or that way, it becomes this. जैसे अभी हमने किया था 10C2, इसमें कुछ नहीं करना, क्या लिखना है? 10 into 9 divided by 2. जो अभी क्या था, मैंने देखो लुक इस क्वेश्चन में क्या किया, 10 into 9, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था बिकॉज आई डिड नॉट टीच द वैल्यूज, सो इट विल बी 10 into 9 by 2 डिवाइडेड बाय 2 में क्या होता है? जो पहले के 2 वैल्यूज हैं, n into n minus 1 divided by 2. Is that clear or not? This would be the case. Okay, what is the fifth? This one. NPR is equal to NCR into R factorial, जो हमने प्रूव किया था स्टार्टिंग में। किया है कि नहीं किया? हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अगर वो केस आ जाए तो क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। किया है कि नहीं? शुड आई गो बैक टू द थिंग? हाँ पे था, आई थिंक सो, रब दैट आउट। यस, किया था ना ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हमारे पास आए सपोज 7P3, क्या बन जाएगा? 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 7P4 क्या हो जाएगा? 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट्स? नेक्स्ट, व्हाट इज द 8th वैल्यू क्विकली? और 6th वैल्यू, व्हाट इज द 6th वन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाउ टू लर्न। ऊपर दोनों केस में क्या है? एन सेम। सपोज मेरे पास आए 10C7 प्लस 10C6, क्या हो जाएगा? 11C7।
ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज समथिंग दैट वी माइट यूज इन अ क्वेश्चंस. आप वहां पे सॉल्व करोगे, लंबा पड़ेगा. इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं. ऊपर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम. +7c2 क्या बन जाएगा? 8c3. ऊपर एक बड़ा हो जाएगा और दिस वन. कैन वी डू मोर एग्जांपल्स? 12c7 +12c6 क्या हो जाएगा? 13. और 17c5 +17c6 क्या बन जाएगा? 18c7. 6, सॉरी. 6 सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे. मैंने अब क्या किया, बस इसको इस साइड कर दिया. एनी डाउट्स विद दिस? अगेन, व्हाट इज NC0? 1. NCN 1 divided by 2 would make it n into n minus 1 divided by 2. That's how the formula also comes. Should I make a question also? A polygon having n sides. A polygon is having the number of diagonals it will have. Diagonal के लिए क्या चाहिए? दो साइड जुड़नी चाहिए. So what is the case? NC. What is the formula for it? Octagon आ जाएगा. This would make it like when we say no. I'll tell you what. That will be the case. I'll explain it to you. That will be n minus 3 by 2. I'll tell you how to go about it. अभी ये छोड़ो, मैं I'll just explain it in better way, another way. यहाँ तक clear है कि नहीं? Is this clear or not? Okay. Let's start with this question just to improve your form calculations. ये करो, try. NPR that makes it n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Yes or no? NPR makes it n factorial into n minus r minus 1 factorial into r plus 1 factorial. Yes or no? Sorry, it's NPR. I did not see PR. So this makes it n factorial upon n minus. This is n minus r minus 1 factorial. I'm taking C. C के केस में क्या हो जाएगा? n factorial divided by n minus r factorial into r factorial because it's C. N factorial divided by n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial. यही बनेगा. अब इसको सॉल्व करो, ट्राई करो. सीक्वेंस, अब इसमें ए बी भी हो सकता है. ये सीक्वेंस नहीं है ना. ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है. दोनों नहीं देखा. अच्छा, सीक्वेंस में दोनों ले लिया, कॉम्बिनेशन में सिंगल. वो तो शेक हैंड कर रहे हैं. ए बी से मिला है, बी ए से मिला है, बात एक ही है. इज इट क्लियर? मैं बोलूं मैच कितनी देर से खेल सकते हैं, तो वो बात होगी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नॉट हो गया आंसर? क्या किया? बट ऑब्वियस. अब मैंने ये पहले कराए थे प्रैक्टिस के लिए. n माइनस आर फैक्टोरियल. ये क्या हो जाएगा? n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल. यस और नो? यही होएगा ना. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. n से n कैंसिल हो जाएगा. दैट मेक्स इट n माइनस आर इज इक्वल टू 1. इज इट क्लियर? और n इज इक्वल टू r प्लस 1. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस और नो? अब इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर. बड़ा क्या है? ये वाला चीज बड़ा है, तो इसको n माइनस आर फैक्टोरियल ले रखा. इसको क्या लिख सकते हैं? r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल. यस और नो? r को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस 1 कॉमन ले लिया. यस और नो? और यहाँ पे क्या बच जाएगा? n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल. यस और नो? क्लियर है कि नहीं? अब इसमें से क्या कैंसिल किया? n से n कैंसिल किया. यस. n माइनस आर कैंसिल किया. r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल किया. क्या बच जाएगा? 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस n माइनस r प्लस 1. इसको सॉल्व करो बस. दैट मेक्स इट n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू r. n इज इक्वल टू 2r.
-1। n की वैल्यू क्या है? r+1, so r comes out to be 2। n की वैल्यू क्या है? r+1। एनी डाउट्स? डोंट गेट स्केयर्ड बिफोर डूइंग इट। अगर हम, इसका मतलब क्या होता है, 47C4 r को 1 से लेके सब वैल्यू पुट करेंगे। 1 पुट किया, 51C3 प्लस 52C3, 52 नहीं 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3 प्लस 47C3। ये सुनो, अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 48C4। ये सुनो, अब 48C4 प्लस इसको कंबाइन कर देंगे, क्या हो जाएगा? 49C4 प्लस 49C3। जस्ट प्रॉपर्टीज याद करने का तरीका बता रहा था। ये क्या हो जाएगा? 50C4 प्लस 50C3 क्या बन जाएगा? 51C4। 51C4 प्लस 51C3 जब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? 52C4। ये सुनो, अब 52C4 को सॉल्व कैसे करते हैं? 52 फैक्टोरियल अपॉन, और इसको करने की अगर सिंपल से बात करो, 52, दैट मेक्स इट 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 divided by 4 into 3 into 2। That's it. That would be the answer. Clear or not? Is it clear? Next, please try this. I'm just trying to make sure that you revise the values कि कैसे कर सकते हो, ये try करो। Options दे देता हूँ, 12, 8, 6, 10। How would you do this? अगर हम इसको solve करें क्या हो जाएगा? 43 factorial divided by 43, 3r minus 1 factorial. Yes or no? इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 43 फैक्टोरियल अपॉन 49 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r minus 6 factorial, 43 factorial, this becomes 42 minus 3r factorial, 3r minus 1 factorial। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? 3r minus 1? Yes. Is it clear or not? So what should I do to get this value as so and so? What should I do now? 43 43 cancel हो गया। What does it happen? 43 43 cancel हो जाएगा। 3r प्लस 1, सॉरी 3r प्लस 1। यस, 3r प्लस 1। हाँ, अब क्या करूँ इसको सॉल्व करने के लिए? 43 43 कैंसिल हो गया। हाउ शुड आई सॉल्व इट? दैट विल बिकम टू लॉन्ग, सो व्हाट शुड आई डू? हम्म, आर की जगह ऑप्शन पुट कर लिया। हाँ, क्या पुट किया? अगर तूने ए ऑप्शन, इसने बोला पुट किया, मैंने ए ऑप्शन पुट कर लिया, दैट मेक्स इट ए इज 12। 12 कितना होता है? 49 minus 12, 37 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 42 माइनस 36 क्या हो जाएगा? 6 factorial into 37 factorial, which is correct if you put the options, both are coming out to be correct. So after that, you don't solve, you use the options. Any doubts with this or no? Clear? Just a way of solving it up. अब वापस आते हैं questions पे, ये start करो। A boy needs to select 5 courses from 12 available courses, out of which 5 courses are language courses. If he can choose at most 2 language courses, at most 2 का मतलब क्या है? A boy needs to select 5 courses. कितने courses हैं? 5 from 12 available courses, out of which 5 courses are language। 5 कोर्स चूज करने हैं। इफ यू कैन चूज एट मोस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा। एट मोस्ट का 2 का मतलब क्या है? या तो 0 लैंग्वेज, या 1 लैंग्वेज, या 2 लैंग्वेज, 3 नहीं हो सकता एट मोस्ट। और टोटल कोर्सेज कितने चूज करने हैं? 5। पहला कोर्स होएगा जहां पे आप क्या चूज करोगे? 5 हमारे पास कौन से हैं? अब इसमें क्वेश्चन में क्या पता लगता है कितने लैंग्वेज कोर्सेज हैं? टोटल कोर्सेज आर 12, लैंग्वेज कोर्सेज कितने हैं? 5। नॉन लैंग्वेज कोर्सेज कितने हैं? क्लियर और नॉट? और हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट लैंग्वेज, 0 लैंग्वेज, दिस एंड दिस। इज इट क्लियर और नॉट? हमें क्या चूज करना है? दिस इज व्हाट वी नीड टू
choose. How would you go about it? That's the question. How do you go? Selection पूछ लिया ना, जहाँ पे उसने वर्ड दे दिया 5 है, गिवन है. A boy needs to select 5 courses. क्वेश्चन में गिवन है 12 अवेलेबल कोर्सेज हैं, 5 लैंग्वेज कोर्सेज हैं, 7 आपके पास नॉन लैंग्वेज है. एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? 2 से बड़ा नहीं हो सकता. 0 लैंग्वेज भी हो सकता है, 1 लैंग्वेज भी हो सकता है, 2 भी. करो. What's your answer? 7. Okay, what does it mean? Yours? Huh? 350. Okay, what does it mean, by the way? Now let's start with it. A boy needs to select 5 courses. 5 courses. From which 12 available courses, out of which 5 courses are language. 5 courses हमारे पास languages, 7 हमारे पास क्या है? Non-language. If you can choose at most 2 languages, what does it mean? Out of what do we have? All 5 are non-language. Yes or no? Plus 0 language. Or what he can do? Choose 4 non-language plus 1 language. Yes or no? 7 5 चूज कर सकता है और 0 लैंग्वेज. प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट क्या पूछा है ना उसने, हम उस हिसाब से चल रहे हैं. इज इट क्लियर और नॉट? क्या बोलता है? एट मोस्ट. और ही कैन चूज 3 लैंग्वेज प्लस 2 लैंग्वेज प्लस 3 नॉन लैंग्वेज. और का मतलब क्या होता है? प्लस. एंड का मतलब क्या होता है? एंड. व्हाट डज एंड मीन हियर? मल्टीप्लाई. एंड इज मल्टीप्लाई. आई एम सेइंग वे ऑफ चूजिंग द कोर्स बाय द वे. और क्या होता है? प्लस. 5 नॉन लैंग्वेज कोर्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी? 7C5. यस और नो? ये क्लियर है कि नहीं? कितने नॉन लैंग्वेज कोर्स थे हमारे पास? 7. कितने चूज करने हैं? 5 उसमें से. पहला केस क्लियर है कि नहीं है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5C0. बिकॉज इसमें से कुछ भी नहीं, कॉम्बिनेशन में चूज करेंगे ना. हमें कौन सा बोला है कि पहले मेरे को लैंग्वेज चूज करना है? याद आ गया क्वेश्चन? उसमें क्या था? 2 लैंग्वेज पहले चूज करनी है, फिर वो चूज करना है. अब ये तो है ही नहीं, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं. और 7 में से 4 चूज करेंगे, कौन से? नॉन लैंग्वेज. और अब 5 में से एक कौन सा चूज करना है? लैंग्वेज. प्लस 7 में से अब कितने चूज करने हैं? 3 नॉन लैंग्वेज. और कितने चूज करने हैं? 2. ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ये आपका वैल्यू बनेगा. अब देखो, जो मैंने फॉर्मूला सिखाए थे उसका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा. ये क्या होता है? 7 × 6 डिवाइडेड बाय 2. बताया था ना? 7CR. 7CR क्या हो जाएगा? इट कैन बी रिटन एज 2 ओनली. यस और नो? व्हेन द डिफरेंस इज 2. क्लियर है कि नहीं? ये क्या होता है? 1. ये क्या होता है? 1. ये 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. 5C1 5. 7C3. 7C3 क्या हो जाएगा आपका? 7 × 6 × 5, जो यही है वो यही होएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. 5C2 क्या होता है? 5 × 4 डिवाइडेड बाय. कार्ड में तो पता था ना, पहले किंग चाहिए, वो चाहिए. इसमें कुछ ऐसा ही नहीं. रिपीटेड में हम वो क्या करेंगे? हमने क्या बोला है कि पहली चीज है एट मोस्ट 0 चूज. हाँ, बॉल्स में इसमें क्या होएगा, पर वो है ना कि हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ये तो नंबर ऑफ केस निकाल रहे हैं. याद आया? वो डिवाइडेड बाय होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए होता है. क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नंबर ऑफ केसेस निकालने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा. वो पूछ रहा परसेंटेज वाइज कितनी होगी, क्या होएगा. वो था. समझ आया कि नहीं? उसमें देख, डिवाइडेड बाय होता है, वो तो हमें पूछा ही नहीं. पर तू क्या निकाल रहा है? डिवाइडेड बाय वो सब प्रोबेबिलिटी निकल रही है ना. फिर तो 12, पहले 12 करेगा, फिर वो करेगा. पहले हमारे पास क्या है? 12. तेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी है? 12. तो क्या करेगा? 5 ऑप्शंस को फिल करना है, वैसे ही करेगा. 7 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय दैट, वो कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है. क्लियर है ना? वो अब हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ केसेस निकालने की बात कर रहे हैं. क्लियर है? ओके, कैन वी मूव अहेड? समझ आ जाओ परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है. अब समझ आना शुरू हो जाएगा कि डिफरेंस होता है, वो नंबर्स होता है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है इसके आने की. डिवाइडेड बाय से आता है वो हमने प्रोबेबिलिटी पहले की है.
हम अभी क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस। क्लियर? अब ये वाला करो, सेम है, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ केसेस निकालने को बोल रहा है। सपोज अनिल मदर वांट्स टू गिव 5 whole fruits टू अनिल फ्रॉम बास्केट ऑफ 7 red apples। मम्मी कहती है देखो ब्रेकफास्ट में लेके जाना है 5 whole fruits। कितने एप्पल्स हैं? 7। व्हाइट एप्पल्स कितने हैं? 5। 8 कितने हैं? ऑरेंजेस कितने लेके जाने हैं आपको फ्रूट्स? 5। एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? एटलीस्ट 2 ऑरेंजेस, कम से कम 2 तो ऑरेंज कम से कम होने चाहिए। एटलीस्ट 1 red apple, एटलीस्ट 1 white apple has to be given। टोटल ऑप्शंस कितने हो गए? तो 4 हो गए, मतलब कि एक कोई भी एक्स्ट्रा फ्रूट जा सकता है। यस और नो? ये क्लियर है कि नहीं? टोटल कितने फ्रूट्स देने थे? 5। 4 तो ये मतलब कि ऐसे जाएंगे जाएंगे। अब एक फ्रूट कोई भी टाइप का हो सकता है। यस और नो? तो 3 केस बनेंगे। मस्ट बी गिवन इन नंबर ऑफ वेज अनिल मदर कैन ऑफर 5 fruits टू अनिल। पहला है 3 ऑरेंज, 1 रेड एप्पल, 1 व्हाइट एप्पल, और यस और नो? 2 ऑरेंज, 2 रेड एप्पल, 1 व्हाइट एप्पल, और 2 ऑरेंज, 1 रेड एप्पल, 2 व्हाइट एप्पल। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? Everybody is clear? Now, what's the probability? Should I do the first one now? ये खुद से करोगे। 3 oranges होने की probability क्या है, जल्दी बताओ। What's the probability of having 3 oranges? 8, sorry, combination में करेंगे ना, 8C3। Next, red apple, 7C1, 5C1, plus this, जो भी है देखते हैं, अभी करते हैं। 2 oranges, 8C2, 2 red apples, 7C2, 5C1, the last one, 8C2, 7C1, 5C2. Yes or no? Clear? Let's solve it up. 8C3 is what? 8 into 7 into 6 divided by 6. Yes or no? 7C1, 7, 5C1, 5। हमें पता होना चाहिए ना C1। कौन कैलकुलेशन कर रहा है? कौन कैलकुलेशन कर रहा है इसके लिए? कौन कर रहा है? कौन इसके लिए कैलकुलेशन कर रहा है? ये निकालने के लिए 5C1 और ये कौन कर रहा है? हाँ, अरे वो कैलकुलेशन कर रहा है। I'm just saying कि वो कौन कैलकुलेशन कर रहा है। 5C1 क्या है? 5। 8C2, 7C1, that's it, that's your answer। क्या हुआ? 56 into 7 into 5 plus 28 into 21 into 5 plus 28 into 7 into 10, that's your answer। total number of cases पूछा है। कोई डाउट इसमें? इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा, जस्ट 1 वाला आएगा, बट जस्ट मैं सिर्फ वो 8C1 और ये वगैरह अगर मैं कैलकुलेशन अभी ये नहीं कराऊंगा तो आप भूल जाओगे उधर। बिकॉज ये जो है ना, ये भी टाइम बचना चाहिए ये वाला। क्लियर और नॉट? क्या हुआ? Is this clear or not? That's why I'm teaching those things। That's I've done this in terms of probability, explain किया हुआ है ऐसा। What should we do? Look at the concept, what should we do? B1 B2 दोनों नहीं होने चाहिए। तो एक है जब में B1 B2, एक है B1 है और एक में B2 है। दूसरा है जब इसमें B1 B2 दोनों है, नहीं है।
देख B1 गोइंग B2 नॉट गोइंग, एक में है दोनों ही नहीं है. B1 B2 should not be members of a group, both B1 B2 together. एक तो होएगा, तुम तो वो ले रहे हो जब B1 B2 नहीं है, तो एक में B1 नहीं होएगा, एक में B2 नहीं होएगा. दूसरा तरीका क्या है? तीन केस और एक और तरीका है, टोटल वेज माइनस व्हेन B1 एंड B2 आर गोइंग, पक्का जा रहे हैं, तो बाकी सब केस हो जाएंगे व्हेन दे आर नॉट गोइंग. अदरवाइज और B1 is going, B2 does not go. First case. Second case, B1 is not going, B2 is going. Third case, both B1 and B2 are not boys or girls. Total boys girls जाने के तरीके क्या है? 10C3, girls के भी 10C3. Yes or no? 10C3 makes it 10 into 9 into 8 into 10 into 9 into 8 divided by 3 into 2 into 3 into 2. 5. Sorry. My bad. Thank you for correcting me. The girls are only 5. 10 into 9 into 8 divided by 3 into 2. 5 into 4 divided by 2. Yes or no? 3 gets cancelled. This becomes 3. This becomes 2. 2 gets cancelled. 4. 30 into 40. Total ways of going is, selection is 1200. Is it clear? Total ways. Second is when both B1 and B2 are going. If B1 and B2 are going, what happens? How are we going to choose? Boys कितने रह गए? 8. Because B1 B2 तो जा ही रहे हैं, और boys में से एक ही boy choose करना रह गया. Into girls का तो same रहेगा. That is 8. What is 5C3? 5 into 4 divided by 80 ways both B1 and B2 are going. So 1200 minus 80 is 1120 answer. Clear or not? Should I do the or also? हाँ बच्चे B1 B2 तो जा ही रहे हैं, गारंटीड है, उनको साइड पे कर दिया. दोनों तो जा ही रहे हैं ना, हमने बोला B1 B2 जा रहे हैं, से सब्ट्रैक्ट कर दिया. दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब B1, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस एक वाले को एक्सप्लेन करूंगा. B1 जा रहा है, B2 नहीं जा रहा. इज इट क्लियर? B1 जा रहा है और B2 नहीं जा रहा, तो इस केस में क्या होएगा? 8C2. 8C2 दो तो खत्म हो गए. B1 और B2 की दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें पता है. B1 जा रहा है, B2 नहीं जा रहा. B1 जा रहा है, B2 नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा? ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे को पता है कि वो तरीका कैसे है, ये गलत हो सकता है. इनटू 5C3. क्लियर हो ना? B1 जा रहा है, B2 नहीं जा रहा. B1 जा रहा है गारंटीड, B2, दो लड़के हैं, दो निकल गए. B1 तो जा ही रहा है. अब जब B1 जा रहा है तो कितने बच्चे रह गए? लड़कों में से दो जाने हैं, 8 में से. B1 इज गोइंग, B2 इज नॉट गोइंग. B1 जा रहा है, B2 नहीं जा रहा. कितने लड़के हो गए? दो. बचे कितने? 8. 8 में से कितने चूज करने लेके जाने के लिए? दो. क्लियर? गर्ल्स का तो सेम रहेगा. जब B1 जा रहा है, 3 ने जाना था, एक चला गया, B2 नहीं जा रहा, दो लड़के निकल गए. तेरे पास B1 से लेके B2 से लेके B10 तक लड़के हैं. B1 B2 का तो सॉर्टेड हो गया. कितने लड़के रह गए? इसमें से कितने जाना है? जब B1 जा रहा है तो 3 कैसे जाएंगे? चौथा लड़का थोड़ी भेज देंगे. B1 सेकंड वाले के लिए भी सेम रहेगा. 8C2 इंटू 5C3. 8C3 इंटू 5C3. ये क्लियर है कि नहीं? ये तो ऐसे, और वाला बड़ा, दूसरा वाला लंबा हो जाता. इट्स इजियर टू डू इट लाइक दिस. क्लियर? It's very simple permutation combination. Very simple, very simple. You get the logics, you get everything. हाँ अच्छा, करें आगे. ट्राई. 9C3 क्यों लेंगे?
नहीं सकते. Next. A class contain B boys and G girls. If the number of ways of selecting 3 boys and 2 girls from a class of 168, then B plus 3G is equal to. That's the question. What does it refers to? B boys choose करने कितने में से? 3. कितने गर्ल्स चूज करनी है? 2 में से. इसका क्या है? 168. Yes or no? इसको सॉल्व किया. B factorial upon B minus 3 factorial into 3 factorial plus G factorial upon G minus 2 factorial upon 2 factorial is 168. और हमें क्या गिवन है? B plus 3G is equal to निकालने को बोलता है. ये कैलकुलेशन होके सॉल्व हो जाएगा.